Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 2 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म का नाम बताओ जो कि पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया फॉर इंडियाज यूथ। इंडिया के यूथ को, जैसे हम जानते हैं इंडिया, हम चाहते हैं 2047 तक एक डेवलप नेशन बन जाए, करेक्ट। तो उसके लिए हमारे यूथ ही, जो हमारा 15 से लेके 29 साल का यूथ है, इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, करेक्ट। इसको अपना जो हमारा लाइन है, जिससे हम चाहते हैं कि हमारी जो डेवलपमेंट हो, इन लाइन लाने के लिए विद द नेशन, यहाँ पर यूथ को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, स्किल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि वो अपनी फील्ड में एक्सेल कर सके और जॉब अपॉर्चुनिटीज ले सके। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जो कि है मेरा युवा भारत, या फिर हम बोले माय भारत, ठीक है। ये लॉन्च किया गया था कब से कब तक लोग के बच्चों के लिए या फिर लोगों के लिए, 15 से 29 साल के लोगों के लिए इसको लॉन्च किया गया। एंड ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये डिजिटल क्या होता है? फिजिकल एंड डिजिटल। फिजिकल एंड डिजिटल ये प्लेटफॉर्म रहेगा जो कि ऑफर करता है फिजिकल एक्टिविटी अलोंग विद द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट डिजिटली, ठीक है। मार्क करके चलेंगे, मेरा युवा भारत या माय भारत पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया, 15 से 29 साल के लोगों के लिए लॉन्च किया गया, और इंडिया के यूथ को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं माय भारत प्लेटफॉर्म, ये एंकरेज करेगा यूथ पार्टिसिपेशन इन नेशनल बिल्डिंग एफर्ट्स, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंगेजमेंट। और ये जो प्रोग्राम है, इट इज द कल्मिनेशन ऑफ मेरी माटी मेरा देश, जो कि एक कैंपेन है ऑफ अमृत कलश यात्रा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। ये रिपोर्ट आपकी रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर है इन इंडिया 2022। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि पब्लिश की गई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया कि एनुअली इंडिया में 2022 में हमने 4 लाख से भी ज्यादा एक्सीडेंट्स ऑब्जर्व करे। फिर इसी रिपोर्ट ने बताया तमिलनाडु वो स्टेट बनी विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, और ये 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए तमिलनाडु ने यहाँ पे टॉप किया है विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, जो कि है ऑलमोस्ट 64,000, और ये 13.5% आ जाता है ऑफ ऑल द एक्सीडेंट्स जो 2022 में हुए इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड एक्सीडेंट्स इंडिया 2022, ये रिपोर्ट का नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा पब्लिश की गई। एंड यूटीज एंड स्टेट्स में मिला के 4,61,000 से भी ज्यादा हमें एक्सीडेंट्स देखने को मिले। एंड 2022 में 1,68,000 यहाँ पे लोगों की जाने गई, एंड 4,43,000 लोग यहाँ पे इंजर्ड हुए। मूविंग ऑन, 37वें नेशनल गेम्स किस स्टेट में होंगे? तो अभी याद रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी विजिट पे थे टू महाराष्ट्र एंड गोवा। यहां पर इन्होंने काफी चीजें लॉन्च की, तो उसमें से एक आ जाता है, इन्होंने अभी लॉन्च किया
इन्होंने इनॉग्रेट किया 37वां नेशनल गेम्स इन एन ऑफिशियल सेरेमनी पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मार्गवा इन गोवा 26 अक्टूबर को। करेक्ट। तो हम देख सकते हैं कि इस 37वें नेशनल गेम्स कहाँ पर होंगे, गोवा में होंगे। यहाँ पर एक मोटो रहेगा आपके नेशनल गेम्स का, वो क्या है, गेट सेट गोवा। ये आपका मोटो रहेगा नेशनल गेम्स का फॉर द 37th नेशनल गेम्स। फिर इसी के अलावा इन्होंने लॉन्च किया नमो सेहतकारी महासम्मान निधि योजना। इन्होंने डेडिकेट किया लेफ्ट बैंक कैनाल नेटवर्क ऑफ नीलवांडे डैम। एंड इन्होंने मोटो जो रहेगा फॉर 37 नेशनल गेम्स वो क्या था, गेट सेट गोवा। और गोवा में होंगे आपके 37वें नेशनल गेम्स। फिर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो आपको याद होगा महाराष्ट्र में फुटबॉल स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन बाकी फुटबॉल लीग के साथ टाई अप किया जा रहा है। इंटरनेशनल फुटबॉल लीग जैसे बुंडेसलीगा हो गया, ताकि जो महाराष्ट्र में यूथ है उनको एंकरेज किया जा सके ताकि दे कैन टेक पार्ट इन फुटबॉल। फिर महाराष्ट्र की ही बात करें तो गवर्नर कौन है, श्री रमेश बायस जी। देन यहाँ पे नेशनल पार्क्स की बात करें तो तडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, देन चंदोली नेशनल पार्क रहेगा। एयरपोर्ट्स की यहाँ पे बात करें तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा यहाँ पे। और एक डांस फॉर्म भी याद रखेंगे यहाँ का जो है लवानी। लवानी यहाँ का डांस फॉर्म इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं काजिंद। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है KAZIND। काजिंद ये एक एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, KAZ और IND। कजाकिस्तान, मैंने बताया कैसे याद रखना है एक्सरसाइज का नाम, ब्रेक कर लो उसको, कजाकिस्तान एंड इंडिया, इन दोनों के बीच में ये एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। करेक्ट। इस एक्सरसाइज का 7th एडिशन हमें ऑब्जर्व किया हमने। लोकेशन क्या रहेगी, कहाँ पे ऑब्जर्व किया, कजाकिस्तान में हमने ये एक्सरसाइज को ऑब्जर्व करा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 2। फिर यहीं पे याद रखेंगे जो छठा एडिशन हुआ था वो दिसंबर में हुआ था 2022 में। एंड वो कहाँ पर हुआ था, हमें मेघालय में देखने को मिला था, इंडिया में। फिर दूसरी चीज पूछी जा सकती है कि इंडिया का कौन सा बटालियन यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो 90 पर्सनल थे इस बटालियन में जिसका नाम है डोगरा रेजिमेंट। इन्होंने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम इंडियन साइड एंड 90 पर्सनल थे जिन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा। मूविंग ऑन, तो देख सकते हैं इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद, कजाकिस्तान में हुई, 7वां एडिशन था। और ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान, जो कि 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक हुई, कजाकिस्तान में हुई। और छठा एडिशन मेघालय में हुआ था। नेक्स्ट फिर बात करते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, UCCN, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। करेक्ट। इस लिस्ट में अभी रिसेंटली 55 सिटीज को ग्लोबली ऐड करा गया एंड इन 55 सिटीज में से 2 सिटीज हैं इंडिया की। एक है ग्वालियर मध्य प्रदेश की और दूसरा है कोझिकोडे जो कि है केरला की। करेक्ट। फिर यहीं पे याद रखेंगे ग्वालियर को हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक, वेयर एज कोझिकोडे को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित करा गया। इंपॉर्टेंट, ये कब घोषित किया गया, वर्ल्ड सिटीज डे के दिन। और वर्ल्ड सिटीज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड सिटीज डे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हो गई, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में कितनी टोटल सिटीज ऐड की गई, 55, जिसमें से 2 इंडिया से हैं, एक ग्वालियर एक कोझिकोडे। ग्वालियर मध्य प्रदेश से, कोझिकोडे केरला से। ग्वालियर की बात करें तो ये सिटी ऑफ म्यूजिक डेजिग्नेट की गई ऑफ यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक, और कोझिकोडे को एज द सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित करा गया। यूनेस्को की बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ऑजले, हेडक्वार्टर कहां पर है यूनेस्को का, पेरिस फ्रांस, और पेरिस फ्रांस में ही 2024 में ओलंपिक गेम्स होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉलिंस डिक्शनरी का जो वर्ड ऑफ द ईयर रहेगा 2023 का, वो क्या रहेगा, वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किस लिए, क्योंकि अभी हमने देखा 2023 में सबसे ज्यादा हमारी कॉन्वर्सेशन में जो यूज हुआ वर्ड है वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। करेक्ट। इसने डोमिनेट किया है सभी कॉन्वर्सेशंस को ऑफ 2023, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अगर मैं बात करूं 2020, 2021 और 2022 के वर्ड ऑफ द ईयर। 2020 का क्या था, लॉकडाउन। 2021 का क्या आपका था वर्ड ऑफ द ईयर, वो था NFT, नॉन फंजिबल टोकन। और 2022 का परमा क्राइसिस। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 2022। लेकिन 23 का सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इंडियन बॉन्ड राइटर नंदिनी दास, इनको अभी 11th ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर द ग्लोबल कल्चरल
अंडरस्टैंडिंग 2023 के लिए यहाँ पे सम्मानित किया गया। आई रिपीट, अभी रिसेंटली नंदिनी दास जो कि इंडियन बॉर्न ऑथर हैं, करेक्ट, ये यूके में बेस्ड हैं, इनको नेम किया गया विनर ऑफ द 11th ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर द ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। एंड इनकी बुक के लिए जो बुक का नाम क्या रहेगा, कोटिंग इंडिया। कोटिंग इंडिया बुक के लिए इनको यहाँ पर 11वें ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज के विनर घोषित किया गया फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और यहीं पर इनको इसके अवार्ड के साथ साथ 25,000 पाउंड स्टर्लिंग का एक कैश प्राइज भी प्रोवाइड कराया जाएगा। राइट, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है चीफ CNS चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार, इन्होंने अभी प्रेजेंट किया मेडन NIB। NIB क्या है, नेवीज इंटेलेक्चुअल बीकन। तो मेडन NIB ये अभी प्रेजेंट किया किनको, टू कमांडर M अरुण चक्रवर्ती को। किनके द्वारा प्रेजेंट किया गया, एडमिरल आर हरि कुमार जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, एंड इनके द्वारा ये मेडन NIB प्रेजेंट किया गया नेवीज इंटेलेक्चुअल बीकन टू कमांडर M अरुण चक्रवर्ती, जो कि विनर रहेंगे इंडियन नेवीज के सरदार KM पनिकर NIB ऐसे कंपटीशन के। डायरेक्ट याद रखना है इसको। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं भेल। भेल के अभी नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है KS मूर्ति जी, कोपू सदाशिव मूर्ति जी। ये नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। 1 नवंबर से इनकी अपॉइंटमेंट शुरू हो जाएगी 2023 में, एंड 28 फरवरी 2027 तक ये इस पोजीशन में रहेंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा याद रखेंगे KS मूर्ति, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं भेल के, करेक्ट, और ये सक्सीड किनको करेंगे, ये सक्सीड करेंगे नलीन सिंघल को, करेक्ट। एंड ये 2019 जुलाई से यहाँ पे चेयरमैन थे, लेकिन अब ये कौन किनको सक्सीड कर देंगे, नलीन सिंघल को सक्सीड कर देंगे कोपू सदाशिव मूर्ति। मार्क करके चलेंगे। भेल की बात करें, ये एक महारत्ना है, करेक्ट। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर KS मूर्ति जी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और 1964 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था। नेक्स्ट पर आ जाते हैं फिर अभी रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल अल्टरनेट, ये एक सब्सिडरी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड की। इनको CCI का भी अप्रूवल मिल गया है फॉर टू बाय स्टेक इन SK फाइनेंस। SK फाइनेंस में स्टेक बाय करने के लिए अप्रूवल मिल गया है मोतीलाल ओसवाल अल्टरनेट को। डायरेक्टली याद रखेंगे, और यहीं पे याद रखेंगे CCI ने अप्रूव किया प्रपोज कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड टू द माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस फंड 4। ये इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस फंड 4 क्या है, ये कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रहेगा जो कि रजिस्टर्ड है विद सेबी। और जो ये SK फाइनेंस जिसमें ये स्टेक बाय करेंगे, ये जयपुर राजस्थान बेस्ड एक NBFC है दैट इज रजिस्टर्ड विद RBI। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फिर सेंट्रल रेलवेज ऑफ मुंबई डिवीजन या मुंबई डिवीजन, इनके द्वारा रिसेंटली अभी कमीशन किया गया BPAC सिस्टम फॉर एनहेंसिंग द रेल सेफ्टी। ये BPAC सिस्टम क्या है, BPAC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ये है ब्लॉक प्रूविंग बाय एक्सेल काउंटर। ठीक है, ये BPAC सिस्टम क्या है, ये काउंट करेगा नंबर ऑफ द एक्सेल्स ऑफ द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन जो कि एक पास्ट के एक पर्टिकुलर सेक्शन से, ताकि पता लगाया जा सके कि ये ट्रेन पास हो चुकी है, एंड जो भी यहाँ पे आपके कोचेस थे ट्रेन के वो सभी पास हो चुके हैं। इससे क्या होगा, जब तक ये पास नहीं होंगे दूसरी ट्रेन को अप्रूवल नहीं मिलेगा टू पास थ्रू दैट पर्टिकुलर जंक्शन। इससे क्या होगा, आपकी जो रेल सेफ्टी बढ़ेगी एंड जो कोलिजन है उसको अवॉइड किया जा सके। तो ये BPAC सिस्टम किस लिए है, ताकि जो रेल सेफ्टी है उसको एनहेंस किया जा सके। किसके द्वारा कमीशन किया गया, ये कमीशन किया गया मुंबई डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवेज। तो मुंबई डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवेज के द्वारा इसको अभी रिसेंटली कमीशन करा गया है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं रिसर्चर्स के द्वारा अभी एक नई फ्रेश वाटर स्पीशीज डिस्कवर की गई है फिश की, जो कि एक एडिबल फिश है। कहां पर डिस्कवर की गई, ओडिशा की महानदी रिवर में, राइट। ओडिशा की महानदी रिवर में एक नई स्पीशीज ऑफ एडिबल फिश को डिस्कवर किया गया जिसका नाम है अवाउस मोटला। अवाउस मोटला, और वहां के जो लोकल फिशरमैन है उसको मोटला के नाम से ही भी जानते हैं। ठीक है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट पर आ जाते हैं फिर ऑब्यूटरी। अभी पायनियरिंग क्लाइमेट साइंटिस्ट सलीमुल हुक, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 71 इन ढाका बांग्लादेश। इनका कराची में जन्म हुआ था, करेक्ट, पाकिस्तान में 2 अक्टूबर 1952 को, एंड इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। ये डायरेक्टर हैं ऑफ द इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट, करेक्ट,
मार्क करके चलेंगे। और इनको 2022 में OBE ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था बाय क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड से। नेक्स्ट पर आ जाते हैं फिर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी, इनके द्वारा अपनी खुद की बायोग्राफी अभी ऑथर की गई। और ये जो बायोग्राफी है ये किस लिए ऑथर की गई, ताकि जो यूथ है उसको यहाँ पर एंकरेज किया जा सके, उनको यहाँ पर मोटिवेट किया जा सके, ताकि वो अपने एम्स को, अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सके। करेक्ट। और ये जो बुक ऑथर की गई है मलयालम लैंग्वेज में इसको ऑथर किया गया। इस बुक का नाम क्या रहेगा, निलावू कुडीचा सिमहांगल। आई रिपीट, निलावू कुडीचा सिमहांगल ये बुक का नाम रहेगा। मलयालम में ये बुक रहेगी। इसरो के चेयरमैन के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया एंड इस बुक को पब्लिश किया गया है केरला बेस्ड पब्लिकेशंस, जो कि है लिपि पब्लिकेशंस के द्वारा। ठीक है। और ये जो निलावू नेम है बुक का, ये इसका मीनिंग क्या रहेगा अगर ट्रांसलेट करें इसको, लायंस दैट ड्रैंक द मूनलाइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर। वर्ल्ड वीगन डे कब ऑब्जर्व करते हैं, 1 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और वीगन क्या होती है, वीगन डाइट जिसमें आप कोई भी एनिमल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट को आप कंज्यूम नहीं करते हैं, चाहे वो आपका नॉन वेज हो या फिर आपका जैसे हम देखें मिल्क हो गया, पनीर हो गया, ये भी कंज्यूम नहीं किया जाता। जो भी प्रोडक्ट आपका एनिमल से आता है हम उसको कंज्यूम नहीं करते हैं, उसको वीगन डाइट कहते हैं। तो वर्ल्ड वीगन डे 1 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया, राइट। एंड इस बार याद रखेंगे 2023 में, और ये पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, 1994 में वर्ल्ड वीगन डे को ऑब्जर्व किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। करेक्ट। तो याद रखेंगे वर्ल्ड वीगन डे 1 नवंबर को। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। पीएम मोदी इन्होंने लॉन्च किया मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म फॉर द यूथ्स ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022, यहाँ पे बताया 4 लाख से भी ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए 2022 में। एंड तमिलनाडु स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया है फॉर द 5th consecutive टाइम विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। पीएम मोदी ने ले किया फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स इन महाराष्ट्र एंड गोवा। और 37वें नेशनल गेम्स कहाँ पर होंगे, गोवा में होंगे। एक्सरसाइज काजिंद की बात करें, ये एक्सरसाइज एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। एंड इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुई, 7th एडिशन था, कजाकिस्तान में हुई। फिर 2 इंडियन सिटीज़ अभी ग्वालियर और कोझिकोडे ये नेम किए गए इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क ऑन वर्ल्ड सिटीज डे। करेक्ट। और यहाँ पे टोटल 55 सिटीज को ऐड किया गया ग्लोबली इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। कॉलिंस डिक्शनरी ने एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया। देन इंडियन बॉर्न यूके राइटर नंदिनी दास, इन्होंने अभी जीता ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023 फॉर कोटिंग इंडिया। नेक्स्ट, सीएनएस एडमिरल आर हरि कुमार ने प्रेजेंट किया मेडन एनआईबी टू कमांडर एम अरुण चक्रवर्ती। कोपू सदाशिव मूर्ति, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भेल एंड इन्होंने सक्सीड किया नालिन सिंघल को। मोतीलाल ओसवाल ऑल्टरनेट्स गेट्स द सीसीआई नोड फॉर स्टेक बाय इन एसके फाइनेंस। सेंट्रल रेलवेज मुंबई डिवीजन कमीशन बीपीएसी सिस्टम फॉर एनहेंसिंग रेल सेफ्टी। अवॉस मोटला, ये एक नई एडिबल फिश स्पीसीज है जो कि ओडिशा की महानदी रिवर में फाउंड की गई। बांग्लादेशी ब्रिटिश क्लाइमेट साइंटिस्ट सलीमुल हक, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 71। निलावू कुडीचा सिमहंगल, ये एक ऑटोबायोग्राफी का नाम है जो कि इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के द्वारा लिखी गई है और ये मलयालम में रहेगी एंड यूथ्स को प्रमोट करने के लिए एंड मोटिवेट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। फिर आ जाता है वर्ल्ड वीगन डे। 1 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वीगन डे। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ पुराने रिवीजन करंट अफेयर्स पर फॉर योर बेनिफिट। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे केयर एंड सपोर्ट। आई रिपीट, इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट ऑब्जर्व किया जाता है 29 अक्टूबर को। एंड जो हमारे एल्डरली पीपल्स को ज़रूरत है केयर की, राइट, एंड उनको हेल्प कर सके, उनको अलग अलग डे टू डे लाइफ में जो भी केयर की रिक्वायरमेंट है उसके लिए यहाँ पे वेरियस पॉलिसीज़ एंड गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। और ये इसका पहला एडिशन है, याद रखेंगे 2023 में, या फिर हम बोलें इनॉग्रल एडिशन ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट का फॉर, जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं 29 अक्टूबर को। करेक्ट। और पहली बार ऑब्जर्व किया गया है ये आपका 2023 में। नेक्स्ट आ जाता है विजिलेंस अवेयरनेस वीक। 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर के बीच में हम ऑब्जर्व करते हैं विजिलेंस अवेयरनेस वीक।
आई रिपीट, विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे प्रमोट की जा सके, करेक्ट। एंड जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, करप्शन होता है, उनको यहाँ पर रोका जा सके, राइट। तो यहीं पे आप थीम भी इसी से रिलेटेड देखेंगे, से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। ये आपकी थीम रहेगी विजिलेंस अवेयरनेस वीक की, जो कि 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन अभी न्यू दिल्ली में हुआ? कहाँ पर हुआ? लोकेशन पूछी जाए तो मानेकशॉ सेंटर, जो कि अभी न्यू दिल्ली में, वहां पर हमें ये अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर देखने को मिला। फिर आ जाता है कौन सा एडिशन था इसका, क्वेश्चन तो यही है। तो 16वां एडिशन अभी हमें देखने को मिला आपके इस अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर का। इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था? इसको ऑर्गेनाइज कराया गया इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट विद डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। 27 से 29 अक्टूबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था और लोकेशन हम देख ही चुके हैं, मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में। फिर ये जो इनॉग्रेट कराया गया था, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया। और यहीं पर एक थीम याद रखेंगे, इसकी क्या थी? इंटीग्रेटेड एंड रेजिलिएंट अर्बन ट्रांसपोर्ट, राइट। आई रिपीट, इंटीग्रेटेड एंड रेजिलिएंट अर्बन ट्रांसपोर्ट, ये आपकी थीम रहेगी इस अर्बन मोबिलिटी एंड इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन की, जिसका 16वां एडिशन था मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में, जिसका इवेंट हमें देखने को मिला। चलिए, और इसको इनॉग्रेट हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा करा गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया अभी 30 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ हेल्दी लैंड को लॉस्ट कर चुका है ड्यू टू डिग्रेडेशन इन द लास्ट 4 ईयर्स। और इस डाटा की बात करें तो अराउंड 9.45% ऑफ इंडियाज लैंड मास वॉज डिग्रेडेड एज ऑफ 2019। दिस वॉज 4.42% इन 2015 और ऑलमोस्ट 9.45% इंडिया का लैंड मास 2019 तक डिग्रेड हो गया। अब डिग्रेडेशन का रीजन क्या है? अनहेल्दी प्रैक्टिसेस, अनहेल्दी यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल्स एक्सेट्रा। फिर डिग्रेडेशन होने का रीजन हो जाता है आपका डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, अर्बनाइजेशन, उससे आपकी जो नीचे की लैंड है उससे बहुत ज़्यादा आपकी अनफर्टाइल हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, करेक्ट। ये डाटा रिलीज किया गया फिर किसके द्वारा? UNCCD के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के द्वारा। एंड इन्हीं के द्वारा यहाँ बताया कि ऑलमोस्ट 30.51 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इंडिया की डिग्रेड हो गई बिटवीन 2015 से 2019 के बीच में। फिर यहीं पे इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया था, नेशनल मिशन ऑन नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। यहाँ पे हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की बात करते हैं, हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने की बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम कैसे नेचुरल तरीके से क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकें, हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे हम अपने फॉरेस्ट कवर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे इंडिया प्लान कर रहा है टू एक्सटेंड द एरिया रिस्टोर्टेड ऑफ लैंड डिग्रेडेशन फ्रॉम 21 मिलियन टू 26 मिलियन हेक्टेयर्स बिटवीन 2020 से 2030। Who has received Global Leadership Award for Philanthropy and CSR? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिलेंथ्रॉफी के लिए भी किनको ऑनर किया गया ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से? न्यू दिल्ली में इनको सम्मानित किया गया। ये है नीता अंबानी। नीता अंबानी हम जानते हैं ये स्पाउस है किनकी? मुकेश अंबानी की। नीता अंबानी फाउंडर एंड चेयरपर्सन है रिलायंस फाउंडेशन के फिलेंथ्रॉपिक आर्म की। इसी के अलावा याद रखेंगे नीता अंबानी को किसके द्वारा? USISPF, ये क्या है? US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इनके द्वारा न्यू दिल्ली में यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंड इनके चेयरपर्सन कौन रहेंगे? जॉन चैम्बर्स, इनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं जॉन चैम्बर्स एंड ये है नीता अंबानी। एंड नीता अंबानी जो अपना वर्क कर रही थी टुवर्ड्स वीमेन एम्पावरमेंट, सपोर्टिंग द चिल्ड्रन एजुकेशन, प्रमोटिंग इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट, करेक्ट, एंड डेवलपिंग स्पोर्ट इन इंडिया, इनके लिए यहाँ पर इनको सम्मानित करा गया। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे नीता अंबानी 2016 में वो पहली वीमेन बनी थी, पहली इंडियन वीमेन जिनको IOC का मेंबर अपॉइंट किया गया था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर अपॉइंट किया गया था 2016 में नीता अंबानी को। एंड यही वो रिप्रेजेंटेटिव थी ऑफ इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिन्होंने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था। एंड इन्होंने 141st
आईओसी सेशन को मुंबई महाराष्ट्र में होस्ट किया था। ठीक है, फिर याद रखेंगे नीता अंबानी, इनको अभी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर फिलेंथ्रोपी एंड सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, हु वन बैलन डियोर अवार्ड इन मेंस कैटेगरी। ये बैलन डियोर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है इन द फुटबॉल स्पोर्ट में। करेक्ट, यहाँ पे मेंस एंड वीमेन कैटेगरी की याद रखेंगे। मेंस कैटेगरी में तो जीता है लायनल मेसी ने, और वीमेन कैटेगरी में किन्होंने जीता है? वो है आइताना बॉनमाती, ये स्पेन से बिलोंग करती हैं, एंड लायनल मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। फिर याद रखेंगे ये 67th एडिशन था आपका बैलन डियोर अवार्ड का, एंड लायनल मेसी ने इसको 8वीं बार जीत लिया है। वेरेज अगर हम बात करें वीमेन बैलन डियोर अवार्ड की, ये 2018 में स्टार्ट किया गया था, और ये 5th एडिशन था वीमेन्स बैलन डियोर अवार्ड का। वेरेज 67th एडिशन था ओवरऑल बैलन डियोर अवार्ड का, जिसमें से 8 बार, ये 8वीं बार लायनल मेसी ने यहाँ पे जीत लिया है। ये बैलन डियोर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? इज प्रेजेंटेड बाय फ्रेंच मैगजीन, जिसका नाम है फ्रांस फुटबॉल, एंड 1956 से ये अवार्ड प्रेजेंट करते आ रहे हैं। पास्ट सीजन में जो प्लेयर अच्छा खेलते हैं और जिनकी बेटर अचीवमेंट होती है, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं मेसी एंड बॉनमाती, इनको यहाँ पे बैलन डियोर अवार्ड से सम्मानित। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट की, राइट, GMIS। इसका भी हमने 3rd एडिशन ऑब्जर्व किया था। लोकेशन का क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पर हुई थी ये ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, तो मुंबई में हमें देखने को मिली थी। एंड जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, यहाँ पे इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर या फिर हम बोले ब्लू इकोनॉमी को ग्रो करने की बात की गई। नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, काफ़ी सारे MOUs यहाँ पर साइन किए गए हैं, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले याद रखेंगे जो ग्लोबल समिट है, हम बात करें ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, अगर इसी की बात करें सबसे पहले, इसके दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल विजन 2047 को लॉन्च किया, क्योंकि हम जानते हैं 2047 में 100 साल पूरे हो जाएंगे इंडिया के इंडिपेंडेंस को। एंड यहाँ पर इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को या फिर इंडिया की मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी को ग्रो करने की बात की गई। एंड इसी समिट के दौरान 23,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया। अब इसमें हम देखेंगे ये जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट थी, 70 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एंड यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स जो मेन रहेंगे वो आपको याद रखने हैं, वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, इंडिया पोर्ट्स एसोसिएशन एंड फिक्की के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे PM मोदी ने यहाँ पे लॉन्च किया पोर्ट्स फॉर प्रोडक्टिविटी, पोर्ट्स फॉर प्रोडक्टिविटी, करेक्ट, ताकि पोर्ट्स की अगर बढ़ेंगे, पोर्ट्स अच्छे डेवलप होंगे तो प्रोडक्टिविटी भी आएगी। फिर यहीं पे PM मोदी ने बात करी वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट क्रूज सर्विस की, जो कि कहाँ पर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल में कहाँ पर होंगे? मुंबई में, चेन्नई में, विशाखापट्टनम में। एंड यहीं पे PM मोदी ने बात की नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने की, कहाँ पर? लोथल में, करेक्ट। फिर इसके अलावा याद रखेंगे सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा यहाँ पे बायलेटरल मीटिंग्स की गई इटली, टैंजानिया एंड श्रीलंका के वेरियस मिनिस्टर्स के द्वारा, ताकि मैरीटाइम कॉपरेशन को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके, करेक्ट। और इस GMIS ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के दौरान 360 से भी ज़्यादा MOUs यहाँ पर साइन किए गए हैं 8.35 लाख करोड़ की लागत के साथ। और यहाँ पर हम देखेंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। स्मार्ट पोर्ट्स यहाँ पर कराए जाएंगे, डिजिटल इंडिया की मदद से इन पोर्ट्स को स्मार्ट बनाया जाएगा, डिजिटाइज किया जाएगा। फिर इसी के अलावा हरित सागर की जो हमारा गाइडलाइंस हैं, हरित सागर क्या है? ये वो गाइडलाइंस है जो कि किसी पोर्ट को ग्रीन बनाती है, मतलब रिड्यूस वेस्ट, रीयूज वेस्ट, उस वेस्ट को रिपर्पस करना, राइट, जीरो टू वेस्ट डिस्चार्ज की तरफ लेके जाता है हरित सागर। मार्क करके चलेंगे इसको भी, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर याद रखेंगे ग्लोबल मैरीटाइम समिट जो कि लॉन्च की गई थी। एंड इसके यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग MOU, 360 MOU साइन किए गए। 3rd एडिशन था, मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिली। एंड ये ऑर्गेनाइजर कौन थे यहाँ पे? जैसे हमने अभी देखा, 3 ऑर्गेनाइजर्स याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, इंडियन पोर्ट एसोसिएशन एंड फिक्की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी पहला इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, 1st एडिशन बोले या फिर इनॉग्रल एडिशन बोले, किसका? इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का। ये कब हुआ? 21 एंड 22 अक्टूबर को हमें देखने को मिला था इंडिया का पहला इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल 21-22 अक्टूबर को हुआ था। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था? ऑर्गेनाइज कराया गया USI के द्वारा। QSI क्या है आपका? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इंडिया का ओल्डेस्ट ट्राई सर्विस थिंक टैंक है, 1870 से ये वर्किंग है।
करेक्ट। एंड इनके द्वारा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कराया गया इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। कहाँ पर हुआ, लोकेशन आ जाए तो मानेकशा सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में है, वहां पर हमें ये देखने को मिला। एंड इनॉग्रेट किसके द्वारा करा गया था, राजनाथ सिंह के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज या इनॉग्रेट करा गया। 2 दिन लंबा ये फेस्टिवल था। एंड यहाँ पर मिलिट्री कल्चर के बारे में एंड जो हेरिटेज है इंडिया का, मिलिट्री से रिलेटेड जो कल्चर्स है, मिलिट्री से रिलेटेड जो यहाँ पे हमारी हिस्ट्री है, उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, फिर यहीं पे एक आ जाता है आपका प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है कि अपनी एंशिएंट स्ट्रेटेजीज को यहाँ पे बढ़ावा देना इन द मिलिट्री डोमेन एंड फॉरेन पॉलिसीज को ना इंक्लूड करके हमारा जो इंडिया का कल्चर है, जो हमारे इंडिया की स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी हिस्ट्री में जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं, उसको सामने लाने की यहाँ पे बात की गई है। एंड उसको हमारी डिफेंस फोर्सेज के जो भी करिकुलम है या फिर जिस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं उसमें इंप्लीमेंट करने की बात की गई। ये है आपका प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव, राइट, प्रोजेक्ट उद्भव याद रखेंगे। ठीक है, और अगर बात करें फिर यूएसआई की, यूएसआई क्या था अभी हमने देखा, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। यहाँ पे आपके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, मेजर जनरल बीके शर्मा। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आ जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी। इनको सम्मानित किया गया हार्वर्ड लॉ स्कूल के बेस्ट अवार्ड से या फिर हार्वर्ड लॉ स्कूल के हाईएस्ट प्रोफेशनल डिस्टिंक्शन अवार्ड से, जो कि है सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड। आई रिपीट, द सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड, ये आपका हाईएस्ट प्रोफेशनल डिस्टिंक्शन है जो किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है फ्रॉम द हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। तो अभी किनको सम्मानित किया गया, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी को, राइट। और ये 2022 के लिए है। ठीक है, दिसंबर 2022 में इनको अनाउंस किया गया था एज द रेसिपिटेंट ऑफ द अवार्ड और अभी इनको सम्मानित किया गया। सिमिलरली 2023 के अवार्ड से कौन रेसिपिटेंट रहेंगे, वो है डाना रेमस, और इनको भी सून इस अवार्ड से सम्मानित करा जाएगा। करेक्ट। सो कमिंग बैक, सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड 2022 से किनको सम्मानित किया गया, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी। एंड फॉर ग्लोबल लीडरशिप इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि कहां पर है, यूएसए में। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023। दूसरा, ऑपरेशन शीशा विच वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली, इसका एम क्या रहेगा, टू कर्ब द इलीगल ट्रेड ऑफ डैश प्रोडक्ट। तीसरा, सलीमुल हक, अभी इनके बारे में हमने बात की, ये किस प्रोफेशन से रिलेट करते हैं। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए बच्चों का, जो भी वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कमेंट चाहिए ताकि आपकी भी रिवीजन हो सके एंड इससे मुझे लगे कि हाँ, जो मैं बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ उनसे उनका बेनिफिट हो रहा है। इसी के साथ साथ जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डेली बेसिस पे वीडियो तो ज़रूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब उन्होंने अभी भी नहीं कर रखा है। तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। Correct? That's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.